So when we are connecting two springs in parallel and when we are connecting two springs in for series and parallel, so वो part हमने देखा था. Then velocity, acceleration and displacement of SHM, along with that amplitude, period and frequency of SHM. तो इसके formulas हमने देखे थे. तो कम से कम 6 formulas तो है ही है, right? 6 formulas are there. So ये formula लिखने के लिए बोला था, प्लस ये स्प्रिंग के 2 फॉर्मूले आए, एक हर इसके लिए 2 फॉर्मूले, फोर्स के लिए एक फॉर्मूला और स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला, एंड देन सीरीज के लिए 2 फॉर्मूले और पैरेलल के 2 फॉर्मूले. एंड देन वी हैव सीन द प्रोजेक्शन मतलब वी हैव सीन दैट इट इज शैडो, right? And then we have connected it with, we have compared it with the uniform circular motion, SHM with uniform circular motion. मतलब सर्कल निकालकर उसकी सारी जो भी सर्कुलर मोशन की जो फॉर्मूले और जो कंसेप्ट थे, that we have used those concepts to understand the motion of simple harmonic motion. And for that we have seen projection of displacement, projection of velocity and projection of acceleration. और उसके 3 फॉर्मूले हमको मिले थे. एक मिला था, है ना, एक मिला था y is equal to r sin omega t plus phi, जिसके हमने v मिला था velocity along y axis. So velocity of y axis is equal to, there's a cos component, so r omega cos omega t plus phi, vy is equal to r omega cos theta या r omega cos phi, and acceleration along y axis is minus omega square y. So from where y came and everything I have explained it thoroughly, right? So that part is over. Now today we'll see what is phase. Phase in SHM or any motion is basically the state of oscillation. In order to know the state of oscillation in SHM, we need to know the displacement position of the direction of velocity and the oscillation number during the oscillation at that instant of time. Knowing only the displacement is not enough, because at a given position there are 2 possible directions of velocity except the extreme position, and it repeats for the successive oscillations. Knowing only velocity is not enough, because there is 2 different positions for the same velocity except mean position. Even after this, both these repeat for the successive oscillations. Hence, to know the phase, we need a quantity that is continuously changing with time. It is clear that the quantities of linear SHM, x, v, a, displacement, velocity and acceleration are the projection taken on a diameter, right, of the respective quantities of the reference circular motion. The angular displacement theta is equal to that they have given, theta is equal to omega t plus phi, right? So now this, the angular displacement theta can be thus used as the phase of SHM, as it varies continuously with time. In this case, it will be called as phase angle. थीटा जो हम लोग ले रहे थे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसको हम बोलेंगे फेज एंगल. जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसी को फेज बोला जाता है ना. ये इतना सारा पैराग्राफ मैंने पढ़ा, उसका मतलब ये बता रहे थे कि टाइम के हिसाब से हर कौन सी चीज है कि टाइम के हिसाब से चेंज होगी. वेलोसिटी चेंज होगी पर कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होगी, राइट? क्योंकि वेलोसिटी कंटिन्यूअसली, पॉजिटिव के लिए एक वेलोसिटी हो सकती है, नेगेटिव के लिए हो सकती है. तो डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है नीचे ऊपर, एक्सेलरेशन भी हो सकता है. तो उसकी वजह से उनको नहीं ले सकते. You have to find out one physical parameter which changes continuously with time. और फिर वो कौन सा पैरामीटर है? थीटा. So theta is omega t plus phi, that is called as phase angle. फेज नहीं है, फेज एंगल. नाउ व्हेन थीटा इज, उसके 3 केसेस है. मैं बोला ये सारी चीजें ली है, पर फिर भी मैं आपको और अच्छे से विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. Now there are 2 possibilities. Theta is equal to 0 indicates that particle is at mean position. Theta is equal to 0. What does it mean that particle is at mean position? And if we draw this with circular motion, and now this, I will draw the dotted, if possible, dotted line is not there. So if this is there, right, this is the motion of this is angular motion, right? Now if this, if I'm calling this as in theta, this is as theta, I'm calling this as theta, then this part is theta. तो अगर थीटा 0 है तो मतलब ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन जो है, वो कहाँ पे? दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो थीटा इज इक्वल टू 0 मींस इट इज इन मीन पोजीशन. तो थीटा इज इक्वल टू 0 मींस इट इज मीन पोजीशन. थीटा इज इक्वल टू 360 मतलब एक सर्कल कंप्लीट करके मीन पोजीशन पे आया, राइट? सो इट इज द बिगिनिंग ऑफ सेकंड ऑसिलेशन. देखो थीटा 0 इट मींस इट्स बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ऑसिलेशन. थीटा 360 मींस बिगिनिंग ऑफ. सो दिस कैन बी आल्सो एक्सप्लेन्ड विद द help of the sinusoidal wave. Actually this is sinusoidal. So this is, just see it. So from this is 0
राइट, दिस इज 0 एंड दिस इज 360, राइट। अब ये 0 है, इसको 0 नहीं ले सकते, इसको 0 क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज इट इज गोइंग टुवर्ड्स नेगेटिव साइड, तो उसको 0 नहीं ले सकते, 0 इट विल मूव, 0 से जो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता है, बिगिनिंग है वो हुआ। तो ये एक वेव कंप्लीट होने के बाद यहाँ से जो चालू होगा, दिस विल बी टेकन एज, हमको पता है, दिस इज कॉल्ड एज 2 पाई, दिस इज कॉल्ड एज पाई, दिस इज पाई बाय 2 90, राइट। सो दिस टू वेव्स आर, मैंने जो बोला था आपको, दोनों कंपेरेबल है, दोनों एक जैसे, दोनों को एक दूसरे के साथ बताया जा सकता है। तो फेज के दो केसेस है, थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा, इसका मतलब मीन पोजीशन है, और थीटा इज इक्वल टू 360 मतलब मीन पोजीशन ऑफ सेकंड ऑसिलेशन, दैट इज पॉइंट नंबर 1। एंड द पॉइंट नंबर 2 इज थीटा इज इक्वल टू 180 और पाई, theta is equal to 180 pi रहेगा, तो it means that indicates that during first oscillation the particle has mean position। 180 में भी mean position पे आया कि नहीं आया mean position पे? I'll draw it again। mean position मतलब x axis पे पार्टिकल, अब ये ऑसिलेशन मतलब क्या, पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पार्टिकल ऊपर नीचे हो रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। सो दिस पार्टिकल इज यहाँ पे 0 पे, यहाँ पे मीन पोजीशन पे, इसके बाद ये पार्टिकल ऊपर है, तो दिस अगेन, ये चीज को किससे समझा सकते हैं, सिंपल पेंडुलम से समझा सकते हैं, राइट, सिंपल पेंडुलम से समझा। यहाँ पे है तो 0 पे है, राइट, अब इधर गया तो मैक्सिमम पे चला गया, मतलब ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये A1, तो ये 1 कहाँ पे आया, यहाँ पे आया 1, राइट 1। अब ये यहाँ पे चला गया 2, पोजीशन नंबर 2, तो 2 का आएगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये वेव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ है, यहाँ पे, तो 2 आ गया यहाँ पे, राइट। अब 3 मतलब कहाँ आ गया, एम्पलीट्यूड कितना है, 0, तो 0 मतलब यहाँ से वापस आ गया, देखो वापस आ गया, तो पोजीशन नंबर 3, that is position number 3। now again it has moved to the other side, negative side, negative side में maximum पहुंच गया, position number 4, negative side में maximum पहुंच गया, this is position number 4, here it is position number 4, and again it came back to the mean position, so position number 5, so this is the position number 5। this can be explained, right, ये सर्कल से भी कर सकते हैं, पेंडुलम से भी कर सकते हैं, और साइन वेव से भी कर सकते हैं। so it means that position number 1 is angle 0, यहाँ पे भी देखो, पेंडुलम में भी देखो, साइन वेव भी देखो, पोजीशन 1 एंगल 0, थीटा इज इक्वल टू 0, पोजीशन 2 90 डिग्री, बराबर क्या, 90 डिग्री, और एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, पोजीशन 2 पॉजिटिव साइड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, पाई बाय 2 90 डिग्री, पोजीशन 3 अगेन मीन पोजीशन पे है कि नहीं, देखो मीन पोजीशन, राइट, यहाँ पे भी मीन पोजीशन नंबर 3, ये देखो ये भी क्या है, बट from here it starts moving towards other side, negative side, from 180 it start moving towards negative side, so pi is, तो 0 pi और 2 pi, ये क्या आएगा, मीन पोजीशन आएगा, इसमें फर्क क्या, 0 और 2 pi में पोजीशन विल बी सेम, रिपीटेशन ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पे रहेगा। सो मुझे थर्ड पोजीशन समझ में आ गई। फोर्थ पोजीशन मतलब क्या, फोर्थ पोजीशन क्या है, निगेटिव साइड में मैक्सिमम, मतलब ये साइड में मैक्सिमम, ये फोर्थ पोजीशन, ये भी फोर्थ पोजीशन। तो ये पोजीशन जो है, ये आप अपने ये दोनों फिगर और ये वाली तीनों फिगर एक साथ ड्रॉ करके रखो, ये तीनों फिगर अपने नोटबुक में ड्रॉ करके रखो, और ये फिर 1 2, ये पोजीशन 1 है, एग्री, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 1, तीनों के पोजीशन 1 हो गए, मीन पोजीशन। दिस इज पाई बाय 2, पोजीशन 2, so this is analogous to this position 2, where amplitude is maximum, y is maximum, amplitude is y axis। again position 3, the particle is again along x axis but negative side, here positive side negative side, इस पे भी वैसे आया, negative side में आ गया, negative side में आ गया, so negative side में, so position number 3, this is position number, right, similar thing can be, or you can write इसको same position में बता सकते हैं, this is position number 4 और this is position number 5, राइट। पोजीशन नंबर 4 को आया, y नेगेटिव साइड में मैक्सिमम आया, y देखो, y नेगेटिव साइड में, इधर भी y नेगेटिव साइड में, y इधर, y पॉजिटिव साइड में ऊपर, इधर। सो दिस थ्री फिगर यू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, अच्छे से निकालो तीनों, और ये 1 2 3 4 5 लिखो, और नीचे अपने वर्ड्स में अपने को समझ, ये अपने को समझना है, किसी और को समझाने की ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा कि ड्रॉ 3 फिगर्स शोइंग दी क्या बोलते हैं उसको, फेज, या फिर इसको फेज ही बोलते हैं, पर अभी एक्सप्लेनिंग दी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ऐसा आपको कोई बोलेगा नहीं, राइट। ये अपने को समझना है कि these three are analogous figures, और एक दूसरे को, सर्कुलर मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और ये साइनसॉइडल वेव है, जो फॉर्मूला बना मैथमेटिक्स, राइट। तो ये दोनों का इस्तेमाल करके ये तीनों फिगर अपने को अच्छे से ड्रॉ करते आनी चाहिए, अच्छे से ड्रॉ करो और अच्छे से अपने पास संभाल के रखो, राइट। चलो
तो ये समझ में आ गया कि थीटा में भी मीन पोजीशन आता है, सॉरी 0 में भी मीन पोजीशन आता है, 180 में भी मीन पोजीशन आता है। फर्क क्या है, 360 में भी मीन पोजीशन आता है। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब बिगिनिंग ऑफ द वेव, थीटा इज इक्वल टू 360 मतलब बिगिनिंग ऑफ सेकंड ऑसिलेशन, थीटा इज इक्वल टू 180 मतलब पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन बट इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन। सो दिस ऑल 3 पॉइंट्स मस्ट बी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा, राइट, सेकंड ऑसिलेशन विल बी हैव थीटा इज इक्वल टू, ये आ गया है इसमें, है ना। अब ये थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ मैं बाद में बताता हूँ। तीसरा आया, देखो ये जो मैंने अभी अभी बताया, थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब पाई बाई 2 कहाँ रहेगा, इंडिकेट दैट द पार्टिकल इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बराबर क्या अभी बोला मैंने, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, राइट। पॉजिटिव 90 पे कहाँ रहेगा, 270 पे कहाँ रहेगा, 270 अभी जो बताया मैंने, 270 मतलब कहाँ पे रहेगा वो, 270 मतलब मैक्सिमम रहेगा पर नेगेटिव साइड, राइट, maximum रहेगा but on negative side. See, particle is at the negative extreme position. प्रिंटिंग मिस्टेक, स्पेस नहीं दिया बीच में, एक ही वर्ड हो गया पूरा एक लाइन का। पार्टिकल इज एट नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन 270 पे। तो चार केसेस है, चार केसेस अपने को समझ में आ गए, 0, पाई, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। एक में मीन पोजीशन पे रहेगा, दूसरे में भी मीन पोजीशन पे रहेगा बट वहां से पार्टिकल 0 की तरफ बढ़ेगा, तीसरे में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा 90 का, और फोर्थ में नेगेटिव की साइड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा, सो नेगेटिव ऑसिलेशन, राइट। अब ये जो बीच में वाले पाई बाई, और ये रिपीट कब होता है, रिपीट कब होता है, कल बताया था मैंने, रिपीट कब होता है, 360 में रिपीट होता है। और अगर ये वेव है, ये पॉइंट है, ये वाला ए है ना, 3 पॉइंट ले रहा हूं मैं, एक पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। पॉइंट ए रिपीट कब होगा, डी से रिपीट होगा। पॉइंट बी रिपीट कब होगा, यहां से मैं और निकालता हूं एक, राइट। ये पॉइंट बी कहां से रिपीट होगा, ई से रिपीट होगा, स्टार्ट है ना। अगर मैंने ये वेव ही यहां से, वेव को बोला कि मेरे को एक का पार्ट नहीं कंसीडर करने का, वेव मेरी कहां से स्टार्ट होगी, मैं बी से समझूंगा, मेरे को ए नहीं मांगता पार्ट, मतलब मेरे को बी से, बी अच्छा लगा। अगर बी से चालू हुआ, अगर बी से चालू हुआ, अगर ये मैं बोल रहा हूँ कि बी से मेरे को शुरू करना है, तो रिपीट कहां से होगा, ई से होगा, है ना। क्यों मालूम, मैंने कल बोला था, आधा पॉजिटिव, आधा हिस्सा इधर है, नेगेटिव पूरा हिस्सा इधर है, और पॉजिटिव का आधा हिस्सा वो यहाँ से लेगा, एक वेव तो पूरी होनी चाहिए। ओके, अगर मुझे सी से रिपीट करना, ए बी सी ये वाला पॉइंट, सी से मुझे रिपीट करना, तो कहाँ आएगा वो, 2 पाई कहाँ कंप्लीट होगा, हर जगह पे 2 पाई ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे कंप्लीट होगा, राइट। अगर मुझे यहाँ से लेना है तो कहाँ कंप्लीट होगा, यहाँ कंप्लीट होगा। सो दैट 2 पाई कहाँ पे आता है, ये भी एक फिगर अपने आप निकाल के रखो, 2 पाई कहाँ रिपीट होता है, ए बी सी डी ई एफ जी करो, और कौन सा एनालॉगस है, ए का रिपीटेशन कौन सा है, ए का रिपीट हो रहा है, कौन से पॉइंट पे ए रिपीट हो रहा है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, ए इज रिपीटिंग एट डी, राइट, वेरी गुड। बी इज रिपीटिंग फ्रॉम 2 पाई कहाँ पे कंप्लीट होता है उसका, 2 पाई कहाँ कंप्लीट होता है, बी का 2 पाई कंप्लीट होता है ई पे, तो मैं लिख सकता हूँ, इस ई का मैं एंगल लिख सकता हूँ, ई का मैं एंगल लिख सकता हूँ, जो भी है प्लस उतना एंगल लिख सकता हूँ। चलो वो मैं बताता हूँ फॉर्मूले क्या है, ये भी एक फिगर निकाल के रखो, समझ में आ रहा है अपने को क्या रिपीट कहाँ पे होते हैं वो इसको बोलो। अभी भी क्लियर नहीं हुआ फेज मतलब क्या, फेज एंगल समझ में आ गया, फेज नहीं हुआ तो मेरे को बताने का, बहुत अच्छे से बताने, देखते हैं। इसका एग्जांपल है, एग्जांपल आप सॉल्व करेंगे ऐसा मुझे लगता है, डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द ऑसिलेशन, आप करो सॉल्व। छोटे छोटे एग्जांपल है, 5.7 का छोटा सा एग्जांपल है, 5.8 का भी छोटा सा न्यूमेरिकल है, स्मॉल न्यूमेरिकल है, एक लाइन का ही आंसर है उसका, तो मैं उसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, ये भी एक लाइन के आंसर वाले है, राइट। अब ये आया 5.9, ये पॉइंट समझ में आया, तीन आपकी चार चार जो फेस के चार कंडीशंस है, तो समझ में आया, 0 पे कहाँ रहेगा, पाई पे कहाँ रहेगा, पाई बाई 2 पे कहाँ रहेगा, और 3 पाई बाई 2 पे कहाँ रहेगा। चलो समझ में आया। अब ये देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा, ये देखो टेबल बनाया उन्होंने, हालांकि सिंपल है, और ये देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने को करना है, इसमें उन्होंने 3 कंडीशंस ली, दो ही कंडीशन लिए, पिछले साल 3 कंडीशन, चलो 3 कंडीशन लेते हैं अपन, है 3 है, ठीक है, ओके फाइन। तो देखो इसको निकाला उन्होंने, और ये 3 कंडीशन है जिसको उन्होंने काय के नीचे लिखा, फिगर के नीचे लिखा है, राइट। देख लो एक
variation of displacement with time, variation of this velocity with time, variation of acceleration with time. अब B point, particle performing SHM starting from positive extreme position, ये वाला है पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। और दूसरा ये वाला टिप, राइट। ये वाला पहला वाला क्या था, ए पॉइंट जो था, ए पॉइंट लिखा ना, हाँ इधर आया, पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम फ्रॉम मीन पोजीशन। दो अलग अलग है, वही बोला मैं, कहा गया दो है ना पार्ट, ये 5.9 के दो पार्ट है। एक मीन पोजीशन से शुरू हुआ तो ग्राफ कैसा निकालोगे, ग्राफ निकालना है इसके, है ना। मीन पोजीशन से शुरू हुआ तो ग्राफ कैसा निकालेंगे, एक ये एक है, और दूसरा एक्सट्रीम पॉजिटिव पोजीशन से अगर पार्टिकल शुरू होता है तो ग्राफ कैसा निकालोगे। एक्सट्रीम पॉजिटिव से शुरू होता है, हाँ? दो अलग अलग है ना, दो पॉइंट है इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के, एक्सट्रीम पॉजिटिव, राइट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज, ये 9th पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसएचएम एक्चुअली क्या है ये, अगर मैं आपको मुझे पूछेंगे तो ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है। मैंने आपको बोला ना, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इसमें दिखाई नहीं। ठीक है, इसके दो है, पहला है एक है पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन, राइट, एंड बी है पार्टिकल starting from एक्सट्रीम, मतलब एक्सट्रीम पर कौन सा, पॉजिटिव, एक्सट्रीम पॉजिटिव पोजीशन का अपने को क्या करने का, देखने का, राइट। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट। नाउ द नेक्स्ट इज, अपने को निकालना क्या है, तीन चीजें ग्राफ में निकालना क्या क्या है, देखो ग्राफ में क्या निकालना है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, तीनों का ग्राफ निकालना है। वेलोसिटी का भी निकालना है, देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों के ग्राफ निकालना है, तीनों के ग्राफ निकालना है, राइट। है ना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का तीनों का अपने को ग्राफ निकालने का, राइट। तो एक एक करके करते हैं, पहले मुझे बोलो, आप बोलोगे, है ना। मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम, x इज इक्वल टू क्या है, a sin ओमेगा t प्लस phi, राइट। phi सिंबल डाउन पूरा टाइम,
चलो ये नहीं लेते, जाने दो, चलो ठीक है। फाइव थीटा की जगह पे फाइव समझो है ना, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिस्टम। चलो अगला फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले मेरे को बोलने के, मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के तीनों फॉर्मूले वापस, तीनों फॉर्मूले मैं जानबूझ के आपके सामने वापस लिख रहा हूँ। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ ए सिस्टम, क्योंकि याद रखनी ही पड़ेगी आपको। वेलोसिटी ऑफ ए सिस्टम क्या आता है? वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, कोई बोलेगा? ओमेगा इज इक्वल टू, हर कोई है बोलने के लिए? क्या आता है? चैट करके बोल सकते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ ए सिस्टम, और तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम। तीनों फॉर्मूले लिखने का फिर जल्दी जल्दी कोई बोल सकता है कि मेरे को हेल्प कर सकता है? क्या आता है वेलोसिटी ऑफ ए सिस्टम? w ओमेगा इज इक्वल टू, और तीसरा एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम कोई बोल सकता है? एक्सेलरेशन ऑफ ए सिस्टम ए, चैट करके बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए सिस्टम। कल तो पढ़ा है, कल परसों 2 दिन से वही पूरा रट्टा मार के लिया। फिर कोई है फटाक से बोल सकता है क्या है? चैट करके जल्दी, वेलोसिटी ऑफ ए सिस्टम का फॉर्मूला क्या है? देखो कोई बोलेगा कोई? चलो जानो, मुश्किल है भाई। ये फॉर्मूला देखो है ना, वेलोसिटी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलो क्या करेंगे आप, मजबूरी है, इसका डेरिवेटिव लेने का ना, ए ओमेगा कॉस कॉस ओमेगा टी प्लस 5, राइट। और एक्सेलरेशन मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आता है, राइट। तो क्या आएगा? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, राइट, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस, वापस डेरिवेटिव लिया, मैं बताया था ये डेरिवेटिव लेकर आता है। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो डिस्प्ले एक्सेलरेशन मिलेगा, ये बताया था मैंने। मुश्किल है, पढ़ाई नहीं कर रहे पढ़ाई। चलो 3 फॉर्मूला मैंने लिखा, देखो अभी सामने, जस्ट सी इट केयरफुली। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, वेलोसिटी ऑफ ए सिस्टम ओमेगा इज इक्वल टू a ओमेगा, वेलोसिटी ऑफ ए सिस्टम इज इक्वल टू v, है ना, ये सिंबल v a omega cos omega t plus 5, right, velocity of a system, and acceleration of a system a is equal to minus a omega square sin omega t plus 5, right, ये 5, fine. So these are the तीन इक्वेशन हो गए, बराबर, ओके फाइन। अभी अपने को क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पहले निकालना है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ निकालना है। और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ देखो कैसे निकालने के लिए उन्होंने टी की कीमत कितनी ली, अलग अलग। ग्राफ कैसे निकालते? ग्राफ कैसे निकालते? एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, हमको मालूम है ग्राफ कैसे निकालते। एक्स और वाई अगर मिल गया अपने को, बट 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ा, एक्स और वाई की वैल्यूज मिली, वो प्लॉट करते हैं और निकालते हैं, बराबर ना। ग्राफ तो वैसी है, इट इज बेसिकली सेम, ग्राफ ही प्लॉट करना है, बट कौन से वैल्यूज के लिए प्लॉट करना है। ये देखो, ये टेबल बनाने का सबसे पहले, ये वाला टेबल, ये वाला टेबल, राइट। 2 टेबल बनेंगे, एक मीन पोजीशन के लिए एक टेबल बनेगा, और एक मीन पोजीशन के लिए एक टेबल बनेगा, और दूसरा एक मीन पोजीशन के लिए टेबल बनेगा, और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। देखो टी की वैल्यू कितनी लेनी की, 0, t/4, t/2, 3t/4, t एंड 5t/4। वापस मैं ड्रॉ करता हूँ अभी इसको, राइट, आपको समझने के लिए वापस ये ड्रॉ करता हूँ, आपको पता है पर फिर भी एक बार, चलो एक बार वापस ये समझना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा इसको, अच्छे से समझना पड़ेगा एकदम।
ओके फाइन। अब एंगल लिखते हैं, एंगल ये 0 आएगा, यहाँ पे 2 पाई आएगा, 2 पाई आएगा बराबर के पाई बाय के पाई आएगा, राइट यहाँ पे पाई आएगा, वेरी गुड। यहाँ पे कितना आएगा पाई और यहाँ पे कितना आएगा 2 पाई, एग्री, ओके फाइन। ये एक पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट क्या है, इसी इसमें मुझे इसी चीज में मैंने 11th वालों को बताया पर तो बाकी है। अभी ये हो गया एंगल इन रेडियन। अब एंगल इन डिग्रीज अगर मुझे लिखना है तो क्या होगा, एंगल इन डिग्री अगर लिखना है तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 180, यहाँ पे आएगा 360, राइट। यहाँ पे 0 आएगा, 180 आएगा, 360 है, राइट, हो गया। अब तीसरा मुझे इसमें टी भी लिखना है, टी भी लिखना है। अब ये यहाँ पे एंगल कितना आएगा, यहाँ पे एंगल कितना आएगा बीच में 90 डिग्री आएगा, मतलब पाई बाय 2, इधर 270 आएगा मतलब 3 पाई बाय 2, राइट, पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, 90 270 हो गया। अब एक साइकिल पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, एक साइकिल पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टी, पीरियड टी, एग्री क्या। मतलब ये यहाँ पे अगर मैं टाइम अगर मुझे लिखना है तो यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है मुझे टी, तो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ उसको, राइट। यहाँ पे जो दिख रहा है टाइम जो है वो मुझे लग रहा है टी, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए टी लग रहा है। आधा साइकिल पूरा करने के लिए टी बाई 2, टी बाई 2, 1/4 25% साइकिल पूरा करने के लिए कितना लगा है टी बाई 4। यहाँ पे कितना लग रहा है 0, यहाँ पे टाइम कितना है 0 है, यहाँ पे टाइम कितना है टी बाई 4, यहाँ पे टाइम कितना है टी बाई 2, यहाँ पे टाइम कितना है 3 टी बाई 4, 3 टी बाई 2, राइट। यहाँ पे टाइम कितना है 3 टी बाई 4, यहाँ पे टाइम मतलब एक ही एक्सिस पर एंगल भी लिख रहे हैं, टाइम भी लिख रहे हैं और भी वेलोसिटी लिख के आता, मैंने 11 में बताया था। सो दिस वेव कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम आल्सो, पीरियड आल्सो, इन टर्म्स ऑफ एंगल आल्सो, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आल्सो, सो मेनी चीजें। एक साइन वेव कितनी अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है। सो टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो गया, राइट। सो और इसके बाद में जब कंटिन्यू ये वेव जब आगे कंटिन्यू होगी, इसके आगे वाला पॉइंट क्या आएगा, इसके आगे वाला ऊपर जाके देखो, एक हिस्सा मतलब टी में गिन रहा हूँ मैं, एक हिस्सा मतलब ये हुआ टी बाई 4, ये टी बाई 4, एक टी बाई 4, उसके बाद ये 2 टी बाई 4, फिर उसके बाद में ये 3 टी बाई 4, सही है क्या, तीसरा हिस्सा हो गया 3 टी बाई 4, 4 टी बाई 4 और ये 5 टी बाई 4। ये एक हिस्सा एक्स्ट्रा क्यों लिया मैंने, क्योंकि समझने के लिए कि आगे क्या हो रहा है। ये 5 टी बाई 4 हो गया, राइट। ये पांचवा हिस्सा टी बाई 4, टी बाई है ना, टी बाई 4, 2 टी बाई 4, 3 टी बाई 4, रोटी के हिस्सा ले रहे ना, एक रोटी के 4 हिस्से कर लिए, फिर एक हिस्सा हुआ, दूसरा हिस्सा हुआ, तीसरा हिस्सा हुआ, चौथा हिस्सा हुआ, फिर ये एक पांचवा हिस्सा, इस तरह से। तो 1 दिस इज टी बाई 4, दिस सेक्शन इज टी बाई 4, दिस इज 2 टी बाई 4 मतलब टी बाई 2 हुआ, दिस इज 3 टी बाई 4, फिर इसके बाद में 4 टी बाई 4, 4 टी बाई 4 मतलब टी हुआ, 4 टी बाई 4 मतलब टी हुआ, 5 टी बाई 4। अब ये देखो, यही चीज यहाँ पे, यही चीज हमको ये टेबल में दिखाई दे रही है। देखो मैं थोड़ा सा भी टेबल को नीचे कर, सॉरी टेबल को नीचे करता हूँ, देखो वही चीज दिखाई दे रही है, देखो नहीं दिखाई, सेम चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। 0 मतलब कौन सा हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट, टी बाई 4 मतलब कौन सा हुआ, हम जिसको 90 डिग्री बोल रहे थे वो टी बाई 4 हुआ इन टर्म्स ऑफ टाइम। टी बाई 2 मतलब हम जिसको 180 बोल रहे थे, 3 टी बाई 4 मतलब हम जिसको 270 बोल रहे थे, टी मतलब हम जिसको 360 बोल रहे थे, और 5 टी मतलब एक वेव आगे जाके उसके बाद में हाफ पोर्ट मतलब 5 टी बाई 4 हो गया, राइट। तो टी की कीमत ये बात ग्राफ बनाने की मतलब एक्स एक्सिस पे कितने लेने के, ये 5 चीजें लेनी है और पॉइंट निकालने का ना, एक्स और वाई। अपन 10th में देखा ना, ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक एक्स और वाई निकालते हैं, तो वही है। यहाँ पे एक्स नहीं है, टी और थीटा है। चलो अभी जब टी 0 रहेगा तो थीटा कितना रहेगा बोलो, 0 दिख रहा है ग्राफ पे से। टी जब टी बाई 4 रहेगा, टी बाई 4 तो एंगल कितना है पाई बाई 2। देखो ये टेबल समझ में आ गया कि 2 मिनट में समझ में आ गया टेबल। ये देखो ये वैल्यू दोनों, इसके ऊपर से ये निकाला जा रहा है, 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 इसके ऊपर से ये निकाला। देखो टी जब 0 रहेगा तो थीटा 0 है क्या, एब्सोल्युटली 0 है। टी बाई 4 थीटा की वैल्यू, एंगल कितना है पाई बाई 2 है, और पाई बाई 2 है। टी बाई 2 यहाँ पे आ रहा है, मतलब एंगल कितना है, करस्पॉन्डिंग पाई है। 3 टी बाई 4 मतलब 270 मतलब 3 पाई बाई 2, 360 2 पाई,
टी जब 360 टी इज इक्वल टू 2 पाई 360 आ गया 5t/4 कितना होगा 2 पाई में वापस कितना ऐड करना पड़ेगा 2 पाई में कितना ऐड करना पड़ेगा 2 पाई में कितना ऐड करना पड़ेगा बोलो पाई/2 है ना पाई/2 हिस्सा है ना चौथा हिस्सा पाई/2 ऐड करो बोलो कितना हो गया 2 into 2 is 4 पाई 5 पाई/2 आया कि 5 पाई/2 देखो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ये t के ये वैल्यूज लेके ये वैल्यूज को कैलकुलेट किया फ्रॉम द ग्राफ भी बोलो या बोलो कि भाई कि कौन सी वैल्यूज कैसी आती है ग्राफ तो अभी प्लॉट करना है अपने को पर एक नॉर्मल किस तरह से आती है जब t 0 रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा t/4 रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना ये सिर्फ इससे नहीं हम सर्कुलर मोशन से भी इसको प्रूव कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं इससे भी प्रूव कर सकते पर ये थोड़ा सा और अलग हो जाएगा तो फिर ये सिंपल है साइन वेव इसको समझ में आएगा चलो अब मैं सवाल पूछता हूँ छोटा सा सवाल ये टी और थीटा की वैल्यूज कैसे आई मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ टी और थीटा की वैल्यूज कैसे आई टी और थीटा सिर्फ टी और थीटा दो कॉलम दो टेबल की दो रोज समझ में आया क्या हैंड रेज करके बोलोगे नवेद के समझ में आया टी और थीटा कैसे आया हसन के समझ में आया हुसैन के समझ में आया अनस के समझ में आया सालिया के समझ में आया सना के समझ में आया जिसके समझ में नहीं आया उसने हैंड रेज नहीं करा तो चलेगा मेरे चलो उल्टा पूछता हूँ हाँ चलो सबने कर दिया मैं उल्टा पूछता हूँ हैंड लो इफ यू कैन लोअर योर हैंड प्लीज इफ यू कैन जिसके समझ में नहीं आया वो बोलो वो प्लीज हैंड रेज करो समझ में नहीं आया क्योंकि ये समझ में आना चाहिए वेरी नाइस वेरी गुड सो कैन आई मूव अहेड अभी क्या करने का एक्चुअल लेट अस प्लॉट इट राइट सारा अभी इसको अभी x की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग t हो गया थीटा हो गया मुझे प्लॉट करने का तो t और x प्लॉट करने का तो जब t 0 रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितनी रहेगी अब ये फॉर्मूले में डालने का t 0 डालो सब्स्टिट्यूट करो t और ओमेगा ये जो है ना वो 0 ही लेने का राइट ये 0 ही लेने का क्या लेने का थीटा 0 लेने का ये यहाँ पे फाई रखने का ही नहीं फाई क्यों है फेज हम 0 लेके चल रहे हैं अभी ये केस में तो ये मैं इसको थोड़ी देर निकाल ही देता हूँ राइट सो व्हाट आई विल डू रिमूव इट कि फाई 0 क्यों ले रहे हैं वो मैं बताता हूँ ओके फाइन सो लेट मी रिमूव इट राइट ओके अब t0 बोलो t0 है तो x की कीमत कितनी आएंगी बोलो यहाँ से साइन 0 कितना आता है साइन 0 जल्दी जल्दी बोलो थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोलो प्लीज साइन 0 की कीमत कितनी हम t की कीमत कितनी ले रहे हैं 0 ले रहे हैं वेरी गुड चलो आ रहा है आंसर ठीक है देखो t की कीमत 0 ले रहे हैं तो साइन 0 0 हो गया तो x की कीमत कितनी आ गई x की कीमत कितनी आई 0 आई मतलब t जब 0 है तो x की कीमत 0 आई टेबल के पहला वैल्यू आ रहा है देखो टेबल का पहला वैल्यू आ रहा है when x is equal to 0 t is also 0 when x is equal to 0 when t is equal to 0 x is also 0 अब sin pi/2 कितना आएगा 1 sin pi/2 1 आएगा फॉर्मूला क्या है देखो इसमें डालो फॉर्मूले में ये फॉर्मूले में फाई की कीमत 0 ही लिया उन्होंने बराबर ना देख लो अब यही फॉर्मूला है ये देखो ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है डालो t की कीमत कितनी pi/2 सो ओमेगा कोई प्रॉब्लम नहीं कितना भी रहा तो चलेगा pi/2 sin pi/2 कितना आता है हमेशा 1 आएगा तो फिर कितनी आई डिस्प्लेसमेंट की कीमत कितनी आई a आई देखो a आई के a फिर वो पाई डालो sin पाई कितना आता है t की कीमत कितनी डालो पाई डालो है ना t की कीमत कितनी डालो t/2 या फिर पाई इसकी पूरी कीमत पाई डाल सकते हैं हम है ना थीटा मतलब ये पूरा थीटा है ना हाँ तो ओमेगा को कुछ लेने का नहीं थीटा डाल रहा हूँ साइन पाई कितना आएगा फिर 0 आया फिर वैल्यू 0 आएगी फिर 3 पाई/2 साइन 3 पाई/2 की कीमत कितनी आती -1 तो कितना हो गया -a मतलब क्या हो रहा है ये ऐसा करते हैं हम आपको याद है ग्राफ प्लॉट करते हो इक्वेशन मिलता है इक्वेशन में हम वैल्यूज डालते हैं और एक वैल्यू डाल के दूसरी निकालते हैं बस वही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वैल्यू कौन सी डाल रहे हैं टी नहीं डाल रहा हूँ मैं थीटा डाल के आसानी से सॉल्व होता है सो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कैलकुलेटिंग द अदर वैल्यूज ऑफ क्या हो रहा है ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ दैट इज नथिंग इट मैं ये समझा रहा हूँ कि थीटा की वैल्यूज डाल के मैंने टी के वैल्यूज के ऊपर से मैंने थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट की और थीटा के वैल्यूज के ऊपर से ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक्स की वैल्यूज पांचों वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की 1 2 3 4 5
ये 5 हो गए एक वेव के, और छठा है वेव जब आगे स्टार्ट होती है, दूसरी वेव जो स्टार्ट होती है। तो एक वेव के 5 वैल्यूज या फिर टोटल ग्राफ के 6 वैल्यूज। ये ग्राफ अगर आता है 12th का एग्जाम, 12th का क्वेश्चन है, सीडी के क्वेश्चन इसके आते हैं, कैसे आते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। फाइन, सो दिस इज एक्स, हमारे 4 वैल्यूज आ गए। अब एक्स का ग्राफ देखते हैं, आगे के सब वैल्यूज देख लो एक बार, सारे वैल्यूज आगे क्या, पहला पॉइंट क्या आया 0, दूसरा क्या आया a, तीसरा क्या आया 0, चौथा क्या आया -a, पांचवा क्या आया 0, छठा क्या आया a। रिपीट होगा ना, यहाँ पे वैल्यू रिपीट होती है, तो आगे लेट अस सी हाउ दे हैव प्लॉटेड द ग्राफ। लेट अस सी हाउ दे हैव प्लॉटेड द ग्राफ। इसकी कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन अपन देखते क्या है। कंक्लूजन पहले ग्राफ कैसे प्लॉट किया, राइट, पहला वाला ग्राफ देखो, सिर्फ ये हिस्सा देखना है अपने को, राइट, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, ये वाला, ओनली दिस पार्ट। मुझे लगता है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। T/4 पे कहाँ पे रहेगा, वो मैक्सिमम पे रहेगा। T/2 पे कहाँ पे रहेगा, T/2 पे कहाँ पे रहेगा, T/2 पे 0 पे रहेगा। 3T/4 पे कहाँ जाएगा, मैक्सिमम -1 की तरफ जाएगा। मुझे एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, टेबल के ऊपर से सीधा सीधा समझ में आता है।